नमस्कार, मैं हूँ पंकज सोनी, PGT Computer Science. I have done MSc Computer Science with B.Ed. I taught in various schools like KV, JNV, DAV, and DPS. During the pandemic, I started my YouTube channel to teach students of class 12 computer science and informatics practice online so that without any problem they can learn in their home, and if they have any doubts they can ask easily to me. They can make phone calls to me, they can send emails to me. I reply as quickly as possible. So let's start our today's class. And before starting the class, please like the video, share the video with your friends so that students can get benefited of free classes of computer science and informatics practice. If you know the students who are searching for such YouTube channels for getting a regular video, and the video is totally based on NCRT and CBC syllabus. So please share the video with your friends and subscribe the channel, and tell your friends also to subscribe the channel and study with me. I teach on the basis of CBC guidelines of 2021 and 22 so that you can get higher marks in board exam. I do not only teach online, I provide notes, test papers, sample papers, model papers, and I provide answers for them. Apart from that, I run practical classes online. I run each and every program on Python interpreter so that students can easily understand the concept behind the topic. I provide the guidelines how to perform the practicals. The guidelines issued by CBSE. There is a set of practicals which should be performed for the final assessment or final practical exam. I also help to develop individual students project for computer science and informatics practice both. So I give full support to the students so that they can achieve highest marks in the board exam. Marks is not our goal, but I provide such a environment to students so that they can learn, they can develop their skills, they can develop their personality after learning these courses. So let's start our class. There are some rules in the front of the screen. Please read it. The most important rule is that watch full video to understand the topic. And my quotation, there are no shortcuts to any place worth going. So please don't skip any part of the video. You need to listen each and every word, each and every sentence. Watch each and every content. Don't miss any video of me. Watch regularly whenever video is posted, and definitely you will get a lot of things from this channel. Thank you very much. Let's start the class. Students, I teach in both the language, English or Hindi, so that the students who have difficulty in understanding English, so that they can watch the video in English or Hindi. I mix both the language, so it should be suitable for all the students because Hindi is your mother tongue. When I teach Hindi, students find me close to their heart, and they are able, they make feel that they can express their views, they can express their feelings whenever I teach in Hindi. So don't mind, I use Hindi language while teaching. So cooperate with me. Let's start the class. Students, today's topic I have chosen.
from chapter 1, review of Python. Topic, introduction. This is second video of my class. If you haven't watched my previous video, I have given the link to the I button. Click to the I button and find out the previous video. Watch it carefully, and then you can watch this video so that you can better understand and correlate the topic. Let's start. Today's topic is script mode. What is script mode? Students, there are two ways to run a program. First one is interactive mode. इंटरेक्टिव मोड क्या है? जब आप पाइथन सेल या प्रॉम्प्ट पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो तो वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसका इंटरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, इसीलिए उसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। ये बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जब आप इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम्स को रन करते हो या स्टेटमेंट को रन करते हो तो वो सेव नहीं होता है। एक बार आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया और तो दूसरी बार वो प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिलीट हो जाएगा। रैम में होता है तो कंप्यूटर शट डाउन करने पर वो, या पाइथन इंटरप्रेटर को ही बंद करने पर वो मेमोरी से आउट हो जाता है। तो इन सच अ केस, if your program is big, then you can switch to the script mode. In script mode, you can create a file, you can save the program for the future use. यहाँ पर फाइल का नाम देकर उसका एक्सटेंशन py रहेगा। py मीन्स पाइथन फाइल, और इसको आप सेव कर लीजिए अपना हार्ड डिस्क में, और जब भी इसको रन करना हो तो इसको पाइथन सेल पर जाकर रन कर सकते हैं। तो आपका वर्क जो है सेव रहेगा और आपका टाइम जो है बचेगा। बार बार आप कोडिंग टाइप करने से बच जाएंगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा। तो चलिए हम स्क्रिप्ट मोड में कुछ प्रोग्राम्स को आज रन करने वाले हैं। एग्जाम्पल, input any two numbers and to find quotient and remainder. क्वोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये स्क्रिप्ट मोड पर कोड दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ए यहाँ पर एक आइडेंटिफायर है, इनपुट एक कीवर्ड है। इनपुट के माध्यम से आप यूजर से कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, कीबोर्ड से उनसे कोई वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर। बी एक वेरिएबल है, इसमें इनपुट होगा एंटर सेकंड नंबर। ए और बी में नंबर स्टोर हो जाएंगे। अब क्वोशेंट फाइंड करने के लिए आप ए डिवाइड बाई बी कर सकते हो, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ए परसेंटेज बी कर सकते हो, तो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिए ये प्रोग्राम रन हुआ इंटरेक्टिव मोड पर, और इसमें आपने इनपुट दिया 10 और 3, तो क्वोशेंट आया 3 और रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो हम इसको इस प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं। इसमें तो कोड जो है स्क्रिप्ट मोड पर है। स्क्रिप्ट मोड का मतलब इसमें आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप पाइथन आइडियली आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो हाउ टू डाउनलोड आइडियली, you can watch the I link button, click to the I link button and find out the video and watch the video. Okay, ideally मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ideally, तो देखिए पाइथन ideally ऐप जो है ओपन हो गया। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इसके फॉन्ट्स को हम चलिए प्रोग्राम को हम टाइप करते हैं। a इज इक्वल टू इनपुट
एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, इसको यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल, न्यू फाइल, ठीक है। ऑप्शन, साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर लीजिए। साइज हमने यहाँ पे 20 कर लिया है, बोल्ड कर लिया है, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। जिससे आप आसानी से इसको देख पाएँ। इसको बड़ा कर दिया हमने। a इज इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, क्लोज कर दिया। b इज इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, प्रिंट क्वोशंट, क्वोशंट इज इक्वल टू a डिवाइड b, प्रिंट रिमाइंडर इज इक्वल टू a परसेंट b। देखिए प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज, ये बाय डिफॉल्ट पाइथन 39 एक फोल्डर है, इसमें जाकर सेव होता है। इस प्रोग्राम का नाम हम रखते हैं क्वोशंट। क्वोशंट सेव। इसको रन करने के लिए क्या है, इसको आप रन करने के लिए रन पे क्लिक करिए, रन मॉड्यूल F5 कर दीजिए। ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, 10 दे दिया। सेकंड नंबर 3 दे दिया। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे और उसमें सही करेंगे। क्वेश्चन.py को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कॉमा a डिवाइड बाई b, या तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। प्रिंट इसको कर लेते हैं ऐसा। प्रिंट
सेव करिए, रन करिए F5 से। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 3, क्वेश्चन इक्वल टू टेस्ट बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। देखिए इसमें क्या एरर आ रही है, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट सी question.py line 4 in module print a divided by b, type error unsupported operator slash str and str, क्योंकि अभी ये str में, ठीक है, स्ट्रिंग है, ए और बी क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए ये डिवाइड पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, उसको पाइथन सेल में देख लेते हैं। इसको क्लोज करिए। जैसे 10 डिवाइड 3 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 10 mod 3 रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जब हम नंबर को इनपुट कर रहे हैं, नंबर को जब हम इनपुट कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसलिए पहले तो हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, तभी जो है डिवाइड के ऑपरेशन हो पाएंगे। ठीक है, अभी तो आप इसमें इस तरह के प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का डिवाइड नहीं होता है। तो परेशान मत होइए, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इस तरह के प्रोग्राम्स रन करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर में फंक्शंस का यूज करेंगे, उस समय ये प्रोग्राम रन होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल एंड टाइप्स। One of the most powerful features of a programming language is the ability to manipulate variables. When we create program, we often like to store values so that it can be used later. We can use objects variables to capture data which then can be manipulated by computer to provide information. By now we know that object variable is a name which refers to a value. Every object has देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे जो पावरफुल फीचर है वो वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, उसमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रोग्राम में क्या है, जो भी आइडेंटिफाइबल एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, आइडेंटिटी। हर एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है, मतलब उसका एक नाम होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का टाइप होता है, जैसे कि नंबर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है, ठीक है, बूलियन है, ये उसका टाइप होता है। और हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 क्या है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। नेम, नेम क्या है, एक वैल्यू है। किसी का नाम रवि है तो रवि जो है उसके नेम की वैल्यू है। आइडेंटिटी of the object is addressed in memory and does not get changed once it is created. We may know it by typing id variable. We would be referring to objects as variable for now. हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी होगी मेमोरी में, तभी तो वो ऑब्जेक्ट है ना, उसका कुछ आईडी है मेमोरी में। तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। हर एक ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में एक आईडी क्रिएट करता है, ठीक है, उसको आप पता भी लगा सकते हो।
फंक्शन यूज कर सकते हो उसके लिए, आईडी फंक्शन। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी। उसके लिए आप आईडी लिखिए और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो उसका मेमोरी एड्रेस पता चल जाएगा। वी वुड बी रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट एज वेरिएबल फॉर नाउ। ऑब्जेक्ट को हम अभी क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल के नाम से रिफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही वेरिएबल बोलते हैं। टाइप, that is data type is a set of values and the allowable operation on those values. It can be one of the following. ऑब्जेक्ट के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, लेकिन पाइथन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको इन डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। ये देखिए, डेटा टाइप। डेटा टाइप की जो मेन कैटेगरी है वो है नंबर, ठीक है, नन, सीक्वेंस, सेट्स एंड मैपिंग्स। और उनकी इंटरनल कैटेगरी है। नंबर कौन 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 से होते हैं, नंबर होता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर की एक और कैटेगरी है बूलियन। नन की कोई कैटेगरी नहीं है। सीक्वेंसेस की 3 कैटेगरी हैं, स्ट्रिंग्स, टपल्स और लिस्ट। मैपिंग्स की एक ही कैटेगरी है और ये है डिक्शनरी। नंबर data type store numerical values. This data type is immutable. Value of its object cannot be changed. Numbers are of 3 different types. नंबर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है और उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं की जा सकती। जैसे कि टू टू एक नंबर है, क्या उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? टू का मीनिंग टू ही होगा, वो थ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर। इंटीजर एंड लॉन्ग, नंबर की 3 कैटेगरी है। एक होता है इंटीजर एंड लॉन्ग, टू स्टोर होल नंबर्स एंड डेसिमल वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं। इंटीजर या लॉन्ग जो नंबर होता है, ये जो स्टोर करेगा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट, टू स्टोर नंबर्स विद फ्रैक्शन। फ्लोट एक ऐसा नंबर टाइप है जिसमें आप डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, मतलब पॉइंट लगाकर कितने भी वैल्यूज उसमें स्टोर कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टू स्टोर रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर तो स्टोर होता ही है, साथ में इमेजिनरी नंबर भी स्टोर हो सकता है, इसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। नन डेटा टाइप क्या है, दिस इज ए स्पेशल डेटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू फॉल्स इन अ सिचुएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नन। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, ये स्पेशल डेटा टाइप है। और तो कब इसको यूज करेंगे, जब वैल्यू नहीं होगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप उसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, नन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, a sequence is an ordered collection of items indexed by positive integer. It is a combination of a mutable variable is one whose value may change, and immutable an immutable variable is one whose value may not change. Data types. There are 3 types of sequence data type available in Python. They are strings, list and tuples. तो यहाँ पर 3 टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सीक्वेंस है, एक तो है स्ट्रिंग, इसमें कैरेक्टर सीक्वेंस होता है, लिस्ट एंड टपल्स, ठीक है। ये 3 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। अब स्ट्रिंग क्या होती है, हाउ विल यू डिफाइन अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर का इसमें सीक्वेंस होता है, वही स्ट्रिंग है, ठीक है, बट ऑर्डर्ड होता है।
अगर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कैरेक्टर्स, दे आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट। स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में क्लोज करना चाहिए। ठीक है, नहीं करेंगे तो एरर आएगी, उसका मतलब फिर स्ट्रिंग होगा ही नहीं। The codes are not part of strings. They only tell the computer about where the string constant begins and ends. They can have any character or sign including space in them. जो आप डबल कोट लगाते हैं स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता है। डबल कोट लगाने से कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रीट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगले डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप है लिस्ट। क्या होते हैं लिस्ट? लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। लिस्ट क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है ऑफ एनी टाइप। वैल्यूज इन द लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, आइटम्स। दीज आर म्यूटेबल एंड इंडेक्स्ड ऑर्डर लिस्ट एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो किसमें इनक्लोज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, और इसमें क्या होगा? लिस्ट में इंडेक्स होगा और ऑर्डर होगा। लिस्ट में क्या होता है? इंडेक्स होता है और ऑर्डर होता है और सीक्वेंस होता है। ठीक है, दीज आर म्यूटेबल। नेक्स्ट है टपल। टपल आर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप एंड आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स। दे आर इम्यूटेबल। टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट। टपल को किसमें इनक्लोज करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। और टपल में क्या होता है? इंडेक्स होते हैं बाई इंटीजर्स लाइक 0, 1, 2, है ना। सेट्स क्या है? सेट्स, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विथ नो डुप्लीकेट एंट्री। सेट में सेट जो है डुप्लीकेट एंट्री को अलाउ नहीं करता है। अगर आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करना चाहोगे तो स्टोर नहीं होगा। इट इज इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होते हैं। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग, दिस डाटा टाइप इज अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। ये मैपिंग जो होती है अनऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल होती है। डिक्शनरीज फॉल अंडर मैपिंग। डिक्शनरी जो है मैपिंग के अंतर्गत आता है। मैपिंग का एक एग्जाम्पल होता है, वो क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरीज इट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट दे स्टोर इज अ की वैल्यू। डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू होता है। पेयर्स, पेयर्स होते हैं उसमें, विच आर एक्सेस्ड यूजिंग की। डिक्शनरी इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी में क्या होता है? कैसे बनाएंगे डिक्शनरी? कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे उसके आइटम्स को। ठीक है, अब बात करेंगे वैल्यू की। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज एनी नंबर और लेटर और स्ट्रिंग टू बाइंड वैल्यू टू अ वेरिएबल। वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। वैल्यू देने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का यूज करते हैं। और वैल्यू क्या होगा? कोई नंबर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, जो कि किसी वेरिएबल में जाकर हम उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are used to give some special meaning to the interpreter and are used by Python interpreter to recognize the structure of a program. देखिए पाइथन में कुछ वर्ड रिजर्व्ड हैं, कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इन रिजर्व वर्ड्स को क्या बोलते हैं?